Hello students, I am Dr. Roma from BBS Institute of English. Today we are going to discuss about the strategy of reading. Reading एक difficult module है जिसको मैं बड़ा easy और interesting आपके लिए बनाने लगी हूँ और बनाया भी इतना कलरफुल है कि बच्चों को वो black and white reading देख देख के boring ना लगे. Now reading can be boring, reading can be dull, लेकिन ये boring और dull होती क्यों है मालूम है आपको? क्योंकि हमें answers नहीं मिलते. हम उसमें अच्छी तरह से जाके समझने की कोशिश करते हैं. Whenever you will try to go deep into the readings and try to understand each and every word of the passage, you will find it very difficult. You will find it very dull. You will find it very boring. Now these are the summary type questions and strategies. See how we are going to do this. Now this is a strategy. The techniques that are going to be there. Summary questions and strategy आपको difficult लगते हैं. बच्चों को ये और headings difficult लगते हैं. दोनों होते एक जैसे ही हैं. Now see question requirements, scanning requirements. Why called a summary question? हमें पहले ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि question की requirement क्या है. What is the requirement of the question? कई बार हम question की requirement पढ़ते ही नहीं हैं, देखते ही नहीं हैं. सिर्फ question को देखा, उसका कीवर्ड अंडरलाइन किया और सोचा कि नहीं अब तो आंसर इसके साथ ही मिल जाएगा, इसके साथ ही हमारा लिंकिंग होगी, लोकेशंस आएंगी एंड एवरीथिंग विल बी डन इन ऑर्डर. दैट इज नॉट द वे. वो एक तरीका नहीं है. वो तरीका बहुत लंबा है, बहुत टाइमिंग है. और एजुकेशन तो एक ऐसी चीज़ है, रीडिंग पर्टिकुलरली एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें जितना कम दिमाग खपाओगे उतना अच्छा आंसर आएगा. जितना आप इरिटेट होते जाओगे कि मुझे रीडिंग आती नहीं है, मुझे आती नहीं है, तो वो रीडिंग आएगी भी नहीं. सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट. नाउ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज बेसिकली fill in the blank paragraph. It does not run the risk of some questions being in order. हम सोचते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 है, ऐसे हमें सीधे सीधे देते हैं. रीडिंग इतना लाड नहीं करती आपके साथ. ऐसा नहीं होता है. The questions can be in order. In order भी 2 to 3 in orders होंगे. बाकी क्रॉस क्रॉस चलते हैं, ऊपर नीचे चलते हैं questions. So don't get irritated. Irritations मत लेके चलो इसमें. इसमें थोड़ा calm रहो, peace of mind रखो. Read the first, what do you say, heading? Read the first line, read the first passage, और उसको passage भी पूरा नहीं पढ़ना. Just head and tail method. कि 2 लाइन्स ऊपर 2 लाइन्स नीचे और बीच में उसका आंसर जो है इतना नहीं होता. It is just skimming and scanning. You have to overview that. Then scanning requirement is very very important. Scanning requirement. This question requires to demonstrate an ability to quickly scan the passage and locate the question's keyword language. Scan होता है फटाफट ऊपर से नजर मारना, देखना. जैसे हम कहते हैं ना मिल्क को स्कैन कर लो, स्किम कर लो, स्कैन करो. स्कैन मींस लाइक जैसे बॉडी स्कैनिंग्स होती है हमारी, पता चल जाता है देयर इज अ प्रॉब्लम. और स्किमिंग होती है, हम उसको ऊपर से छानते रहते हैं. इसमें आप स्कैन करो, वो जस्ट रीड द कीवर्ड एंड just concentrate and focus on the keyword and find the keyword in the passage. Question का keyword और passage का keyword identical होने चाहिए, similarities होनी चाहिए, then only you will be able to get the answer. Then why is it called summary? Summary क्या होती है? passage छोटा सा precis, छोटी सी questions और बहुत elaborative नहीं, छोटा, small. What they are often doing is taking sentences from different paragraphs and putting them together in one paragraph. Sometimes form one big paragraph. It's so simple. ये देखो करते क्या है ये लोग, अलग अलग sentences, lines इकट्ठी करके उसको एक paragraph में लगा दिया और इस तरीके से लगाया कि उसकी sense बननी शुरू हो जाती है. And then it becomes a big paragraph. And in that big paragraph you have to find where is the answer. Now let's see what things you are supposed to remember. ये जो चीजें आपको याद रखनी है. Examine the question. Number 1 tip is question को examine अच्छे से करो. Look at the question very very carefully. Quickly look through the questions and decide which one is the easiest to locate. This will be
easiest locate first. जो चीज आपको सबसे इजी लगती है, 4-5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन आपको मिलता रहता है वो ढूंढ लो, उसको जल्दी जल्दी ढूंढ लो और फिर उसके आगे चलो. जब आप लेके बैठ जाते हो कि मैंने ये क्वेश्चन है, जब तक ये खत्म नहीं होना मैंने आगे नहीं चलना, that is the point where you miss the question and you are losing time also. Time becomes a big hurdle. 90% ऑफ स्टूडेंट्स बाहर आके इतने परेशान होते हैं कि मैम वैसे तो टाइम नहीं मैनेज हो रहा. टाइम मैनेज तभी होगा कि जब आप मूव ऑन टेक्निक में आओगे. आंसर मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया तो आगे चलते हैं. जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे आंसर मिलता रहेगा. अब आप बोलोगे कि मैम आंसर आगे कैसे मिलेगा? आंसर मिलता है क्योंकि हमें प्रीवियस पैराग्राफ्स पढ़ के थोड़े से माइंड में फिट हो जाते हैं. हम उसको जब रीड करेंगे, रीड करेंगे तो फिट हो जाएंगे. अगर हम एक ही क्वेश्चन में बार बार पैराग्राफ्स पढ़ते रहेंगे, देन दैट इज अ पॉइंट जहां पे आपको गलती लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है. इट इज गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम टू यू. नाउ द सेकंड इज आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स. गो थ्रू ईच क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई कीवर्ड्स. नोट, अब ये बड़ा पंगा है कि कीवर्ड्स होते क्या हैं. व्हाट आर द कीवर्ड्स? Keywords are the important words around which the answer is revolving. Generally, ये keywords होते हैं, they are in the forms of names, dates, proper nouns, specific details. फिर उसके बाद keywords जो है आपके adjectives भी बड़े सारे keywords आ जाते हैं. आप क्या करो, इनको underline कर लो. Underline the keywords and you will be finding it easy to handle. उसको आपको लिंक लोकेट करना बहुत इजी हो जाएगा. ये कीवर्ड है, चलो इसको यहाँ से यहाँ ले आओ, इसको यहाँ से यहाँ ले आओ. इट इज द ओनली जर्नी दैट यू हैव टू कवर. इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट. देन ये तो मेरे को बहुत अच्छा टिप लगता है इसका. स्टार्ट इजीएस्ट क्वेश्चन द फर्स्ट. ये दिस इज अ की, दिस इज अ टिप व्हिच हैज प्रैक्टिकली हेल्प्ड अ लॉट टू मेनी स्टूडेंट्स. मेनी स्टूडेंट्स दे हैव रियली बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस टिप कि जो चीज इजी लगती है वो पहले करो. अब आप बोलोगे मैम इजी तो रीडिंग है ही नहीं, आप कैसे कह रहे हो? इजी वो होता है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ होती है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस होता है कि ये वाली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, ये टाइप है, इसका तो मुझे आंसर मिलना ही मिलना. वो इजी होता है, तो उसको आप पहले पकड़ो. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टिप, काइंडली कीप इट इनटू माइंड. टाइम मैनेजमेंट इज क्रिटिकल. इफ Question 4 is easiest to locate, do it first, then do question 3 and 5 after. कि जो पहले easy लग रहा है, क्वेश्चन नंबर पहले 1 easy लगता है तो 1 कर लो, 5 easy लगता है तो 5 कर लो, 3 लगता है तो 3 कर लो. जैसे जैसे जो जो easy लगता रहता है आप कर लीजिए, and you will be a real success. Confidence आएगा, motivation होगी, clear हो जाएगा. मुश्किल नहीं है ये. आपको लगता है कि मैं बार बार कहती हूँ लेकिन ऐसा ही है. Then scan passage for matching language. पैसेज को भी स्कैन करना जरूरी है. कई बच्चे क्या करते हैं, पैसेज को टोटल इग्नोर कर देंगे, पूरे का पूरा छोड़ देंगे और बोलेंगे नहीं नहीं हमें तो आंसर ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढा, ऐसे ही वर्ड ढूंढा और मैच किया, मिल गया. रीडिंग में 40 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं इस टेक्निक से और 20 क्वेश्चंस इस टेक्निक से मिलेंगे आपको. आप ध्यान से देख लेना इसको. Scan passage for matching language. Use your scanning techniques quickly to locate the question language. Question की जो language है उसको locate करो. उसको underline किया, circle किया, ढूंढ लिया, दिमाग में रखा. Same वापस हम कहाँ आ गए? Passage. Passage question मिलता होना चाहिए. कई बार summaries में I'll tell you क्या होता है कि बच्चों की एक बड़ी जनरल सी कंप्लेंट होती है. कंप्लेंट भी क्या करोगे, बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है. वो कंफ्यूजन है कि इतनी स्ट्रैटेजीज पढ़ ली, इतने टिप्स पढ़ लिए, फिर भी गलती लग गई. और वो गलती पता क्या होती है? वो गलती होती है कि उनको एक आंसर 2 जगह मिलता है. वो कहेंगे मैम इसमें भी आंसर है, ए में भी मिल रहा है, मुझे बी में भी मिल रहा है. और जब नर्वसनेस और कंफ्यूजन होती है तो एक क्वेश्चन का आंसर 3 जगह मिलता है. ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ है ये, पर ये होता है. आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा. लेकिन आई शुड टेल यू द सॉल्यूशन कि अगर ऐसा होता है तो बेटा क्वेश्चन के पास वापस जाओ.
गो बैक टू द बेसिक ऑफ द क्वेश्चन। दोनों आंसर्स को पढ़ पढ़ के मिला के ये मत सोचो कि ये आंसर ठीक है कि ये आंसर ठीक है, वो दोनों ही ठीक लगेंगे। लेकिन ध्यान से सुनो, जब आप क्वेश्चन पे वापस जाओगे तो आपको पता चलेगा इसमें से दो आंसर्स तो हमारे क्वेश्चन के साथ मिलते ही नहीं है, और जब दो आंसर्स नहीं मिलते तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए और एक आंसर बच जाएगा। हमेशा जब भी कंफ्यूजन हो इसमें, समरी में या हेडिंग्स में, जब भी कंफ्यूजन हो कि एक आंसर दो जगह मिल रहा है, डोंट बी अपसेट, गो बैक टू द बेसिक। गो बैक टू द बेसिक का मतलब है क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो। जब क्वेश्चन दोबारा पढ़ोगे तो एक आंसर रह जाएगा आपका। और रीडिंग में सबसे फेवरेट टिप मेरा ये वाला है, थर्ड वाला, कि आप सबसे इजी चीज पहले करो, आपके करेक्ट आंसर ज्यादा हो जाएंगे, मोटिवेशन भी बेटर हो जाएगी, and you will really have a good score in it. I hope it's clear. This was really a students were demanding कि मैम ये बता दो मुझे कैसे होना है, and this is the way to handle it. This is just one category I have picked up, and that is a category of a summary. छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं और उसमें कई बार ड्रॉप बॉक्सेस होते हैं, बच्चों को वहम होता है, बहुत गलतियाँ होती हैं कि मैम इसमें तो लगा ही सिनोनिम हुआ है, हमें पता ही नहीं चल रहा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी सिनोनिम वगैरह ऐसी चीज़ें लगी होती हैं, उसका आंसर, उसका मीनिंग पैसेज में दिया होता है, सिर्फ हमारा जो है वहाँ ध्यान नहीं जाता, हम इग्नोर कर जाते हैं, हम नर्वसनेस में होते हैं। सो डोंट फील वेरी uncomfortable, don't feel very upset about this category of question. I have made it clear। और मैंने वर्कशीट्स अपनी लॉन्च कर दी है रीडिंग की जो वर्कशीट्स है उसमें आपको ये सब कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, कि रीडिंग की हर रोज आपकी एक लाइव क्लास भी होगी, उसमें वर्कशीट से रीडिंग्स तो है ही है, स्ट्रैटेजीज है, क्लास में आपको जैसे रीडिंग्स मैं कराती हूँ ऐसे ही ऑनलाइन भी करानी है मैंने, और उसमें मैंने वर्कशीट्स बना दी हैं। वर्कशीट से कि एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पकड़ा, जैसे बच्चे कह रहे हैं हेडिंग में प्रॉब्लम है, तो हेडिंग के मैंने 14 क्वेश्चंस निकाले, वो 14 सिर्फ हेडिंग के ही हैं। मैंने येस नो की आपको प्रॉब्लम आई, वो पूरी रीडिंग येस नो की है। तो इसके साथ क्या होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ट्राई टू फॉलो दैट, बी इन टच, एंड इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज दिस वाज अ मॉड्यूल जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डरते भी हैं और कंप्लेन भी करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। एनी अदर डिफिकल्टीज यू हैव, you are free to give me a message. I'll be always there to help you. Take care. God bless you.